بیت اللہ ومن یطیع فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا یوحی جامع الکلم کلامہ البراق ورفرفہ مرکبہ لا وراء الوراء سفرہ مقام الأهدية مقامه هو كافة للناس أمته خرجة للناس كتابه بيان للناس رسول من الناس جميعا أصحابه مسير الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول الأمين شفيع المسلمين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحق لا إله إلا الله نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پتی پتی پھول پھول سلام تقریر کے بعد سلام شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم تعالوا الى الله صدق الله العظيم سامعین اکرام، آج آپ اور ہم آج جو دن ہے جو 12 ربیع الاول حضور اکرم آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن ہے۔ اسی موقع پر آپ اور ہم جمع ہو کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوائے حمد، جو کلمہ طیبہ بلند، جو جھنڈا ہو رہا ہے، جو ہم کرنے کے لیے آج جمع ہے، الحمدللہ اس کے اوپر جو کلمہ لکھے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تمام قوموں کو ایک کلمے کی طرف، ایک کتاب کی طرف، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے تمام قوموں کو بلا رہا ہے اور تمام اقوام کو ایک جھنڈے کے نیچے جو ہے جمع کر رہا ہے۔ تو یہ آج اور ہم، آپ اور ہم یہ جو جمع ہیں، یہ جو جھنڈا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ کا، اور اسی کے نیچے آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اقوام، ہر قوم سے، ہر خطے سے، ہر قبیلے سے اس جھنڈے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو جمع کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو آیا ہے نہ کہ ایک قوم اور ایک خطے کے لیے آیا ہے، بلکہ تمام اقوام، سارے اقوام کے لیے، ساری قوموں کے لیے، ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر تمام انبیاء اکرام جتنے بھی گزرے ہیں 1,24,000 وہ ایک ایک قوم اور ایک خطے کے لیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام اقوام کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام قوموں کے لیے آپ کو جو ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ کلمہ، یہی کلمہ تمام اقوام کو اپنے جھنڈے یعنی اپنے دربار میں سب قوموں کو جمع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام کی نجات اسی جو ہے کلمہ طیبہ پر رکھی ہے۔ اور ایک بات اس سے ہم آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، مگر یہاں پر بھی اس کلمہ طیبہ کو بیج منتر، انکہی منتر سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں کے کئی مندر مٹھوں میں، ہندوستان کے بڑے بڑے 36 مٹھوں مندروں میں جو ہے یہی کلمہ طیبہ ہے جہاں پر جو ہے ذکر ہے۔ اور بڑے بڑے مٹھ ہو یا جو ہے جتنے بھی ہندوستان میں ہیں، جیسا کہ جو ہے شرنگیری کے مٹھ ہے، اور مونیشور سوامی کا مٹھ ہے، اور جو ہے سدھارتھ مٹھ ہے،
ऐसे बड़े बड़े मठों में जो है यही कलमे तैयबा है। और मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद यही है कि इस कलमे तैयबा जो कि मैं आयत पढ़ा हूँ, एक अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने यानी एक अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु कलिमतन, ये जो कलमे की मिसाल ऐसा दे रहा है जैसे एक दरख्त की मानंद है। जिस तरीके से एक दरख्त जितना पुराना होते जाता है उसी तरह उसको जो है तनावर दरख्त बनता है और वो उसकी शाखें उसकी जड़ें जो है फैलती रहती है। ठीक इसी तरह आज बज़ाहिर बीज की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अरबस्तान पर जो है एक जो है नमोदार हुआ तन्हा, मगर आज देखते ही तो 1500 साल जो है मिलादुन नबी हम मना रहे हैं, मगर सारे अक़वाम में उम्मत मुस्लिमा का जो है डंका है, यानी सारी दुनिया में जो है उम्मत मुस्लिमा फैली हुई है। ये एक ऐसी उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को सरदारुल अंबिया बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब है वो सरदार जो है सारी किताबों की सरदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादत है वो सारी जो इबादतों की सरदार है। ठीक इसी तरह ये जो कलमा है सारे कलमों का जो है सरदार है। और ये जो कलमा क्या करता है वो तो तमाम तफर्रुक़ाबाज़ी को मिटाकर जो है एक ही सफ़ में सबको लाकर खड़ा करता है, एक ही दरबार में सबको जमा करता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि काबतुल्लाह में जो है आप देखते हैं जब हज के मौके पर सब काबतुल्लाह के घर को जब जाते हैं, सब जो है हज के मौके पर एक ही लिबास में एक ही कतार में सब जो है खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इक़बाल ने भी इस बात को फरमाया कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा हो साहिब मोहताज एक हुए तेरी दरबार में, तेरी सरकार में जब पहुँचे तो सभी एक हुए। और बरोज़ महशर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे जो है तमाम जो है लोगों का जो है तमाम इंसानों का हशर होगा, यहाँ तक कि अम्बियाओं का जो है जो भी हशर होगा वो भी इसी झंडे के नीचे होगा। ये जो कलमे तैयबा है बस ज़ाहिर दिखने में ये एक जो है मामूली नज़र आता है, मगर ये दिखने में मामूली नहीं बल्कि जो ये सरदार जो है अपने अंदर सरदार की कैफियत रखता है। जैसा एक बीज होता है दिखने में छोटा होता है, मगर जब वो ज़मीन पे बोया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो एक दरख्त बन जाता है। फिर वो दरख्त जब जो है फलता है फूलता है और बड़ा होता है तो जब वो दरख्त को जो है आप अपने हाथों से जो है काट नहीं सकते, वो इतना तनावर हो जाता है। तो इसी तरह इस कलमे तैयबा को अगर कोई जो है यहाँ पर जितना हो सके उतना फैलाएगा तो वो दरख्त जो है और जो है जितना हो सके उतना जो है और मजबूत जो है होता जाएगा। और तमाम मुसलमानों की नजात का सामान इसी में है कि इस कलमे तैयबा को जो लिवाए हम जो झंडा बुलंद कर रहे हैं ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, अल्लाह और उसके रसूल का वजूद जो है रोज़ अज़ल से है, ये जो है इसकी गवाही दे रहा है। और तमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी जो है कलमे की इशाअत के लिए जो है सहाबा को तैयार किया था और सहाबा इकराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कलाम को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के पैगाम को जो है सारे जो है यानी सारी दुनिया में जो है फैल कर जो है पहुँचाए। ठीक इसी तरह हज़रत क़िबला आलम हज़रत क़िबला आलम के वजूद ने मैदान यानी जो है आपके साथी भी जो है इसी जो है रिवाय हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को और ये कलमे तैयबा को जो है हिंदुस्तान के जो है बड़े बड़े मंदिर मठों में जो है जाकर जो है इस्लाम की हुज्जत, इस्लाम की तबलीग की, इसकी जो है यानी जो है हम्द जो है इसकी कायम की। ये जो कलमे तैयबा है इसी जो है इसीलिए इसका जो है आप देखते हैं खानका में भी जो है लिवाए हम्द होता है, यानी जो है कलमे तैयबा को जो है लगाया जाता है क्योंकि तमाम इंसानों का हशर इसी कलमे के बिना पर है। क्योंकि और भी मुबल्लिगीन हैं वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे और भी नौजवान हैं वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहते हैं। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़मे तौहीद से। बस इतना कहते मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ। वो आखिर दाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 12 रबीउल अव्वल हुजूर सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत का दिन है। इंसान की मकसद कुरान मजीद में अल्लाह फरमा रहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न हसना को अपनाना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए है। और दूसरे कोई मज़ाहिब में जो है आलमीन का मामला नहीं है, सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर आलमीन का मामला है। जितने भी अंबिया कराम और ऋषि अवतार और मुनीस जो भी गुजरे वो सिर्फ सिफ़ात और कौम
और ज़बान के अदक थे, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए है। इसकी मिसाल ऐसी है, जब ज़मीन के अंदर बीज बोया जाता है तो उससे मोड़का निकलता, तो मोड़के से पूछा गया जो अंदर है क्या वो तू है? तो मोड़का कहने लगता है वो मैं नहीं, वो मेरे बाद आने वाला है। उसके बाद पहनियाँ लगते, पहनियों से पूछा गया जो अंदर है क्या वो तू है? तो पहनियाँ कहने लगते वो मैं नहीं, मेरे बाद आने वाला है। उसके बाद पत्ते आते, पत्तों से पूछा जाता जो अंदर है क्या वो तू है? तो पत्ते कहने लगते वो मैं नहीं, मेरे बाद आने वाला है। उसके बाद फूल आता, फूल से पूछा जाता क्या जो अंदर है क्या वो तू है? तो फूल कहता वो मैं नहीं, मेरे बाद आने वाला है। जब फल आता तो फल को काट के देखे तो बीज नज़र आता। तो उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल से है और अब तक रहेंगे, और आपके ही कलमे के नीचे तमाम रूह के ज़मीन के इंसानों को आना है। दूसरी कहीं भी जो है दीन इस्लाम को हटकर कोई अपनी जो है तबलीग को जो है मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सामने ना रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम आलमों के लिए है, और हर ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को ही मनवाया जाएगा। हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं, अमामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, जिब्रील से फरमाया ए मोनिस व दमसास, जिस पर्दे वहदत से तुम्हें आती है आवाज़, देखो तो उठाकर वहाँ पोशीदा है क्या राज। जिब्रील ने की अर्ज़ के खुदरत मेरी क्या, महबूब ने फरमाया जा मेरी रज़ा है। पर्दा उठा देखा नज़र आई ना कुछ है, देखा तो वो देखा जो है, देखा तो वही देखा जो यहाँ है सो वहाँ है। पर्दे में खुदा तो नहीं महबूब खुदा है, अमामा उसी तरह खड़े बांध रहा है। तो ये वाक़या जो हज़रत साहब जो अशार लिखे, इसके अंदर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को बताए कि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में अमामा खड़े बांध रहे थे। तो उसी वक्त जिब्रील जो है आके आप लोगों को चर्च करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लम ऐसा हुक्म आया बोल के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या बात तुम्हारे को ये वही कहाँ से आ रही बोल के पूछते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील बोलते या रसूल सल्लम कई लाख पर्दे हैं उसके पीछे से मुझको आवाज़ आ रही है, मैं वो आपको आके सुना रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते क्या बात देखे क्या कभी उठा के उसको बोलते। तो मेरी उतनी वो नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिसको उठा के वो पर्दे देख सकूँ, जाओ बात देखो बोल के बोलते। तो आप जाके देखें तो पर्दे उठे हुए रहते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह अमामा बांधते हुए नजर आते। तो दुनिया को बनाने का मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद को मनवाना है। हर लिहाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ाई है हमको करना है और बयान करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान सही कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाह। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। इस जश्न के मौके पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और रिवाय हम्द भी खड़ा कर दिए हैं। ये जो ईद है, ये जश्न जो है, इसको ईद उल अयाद भी कहा जा सकता है, यानी ईदों की ईद। मुसलमानों के पास बकरीद, रमज़ान ऐसे ईदें हैं, तो गैर कौमों के पास और ईदें हैं। लेकिन ये ईद बोले तो क्या, खुशी मनाने का दिन। ईद के माने खुशी मनाना। तो ये ईद तमाम इंसानों के लिए है। वो क्यों? क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इंतज़ार में दुनिया की हर कौम
दुनिया की हर कौम एक नबी के इंतज़ार में आने वाले हैं। आखिरी नबी ख़ातमुन नबीन आने वाले हैं। उनकी किताबों में अलग अलग नामों से पुकारा गया। मिसाल के तौर पे हम हिंदुस्तान की किताबों में देखेंगे तो कल्कि अवतार, जगत गुरु, अंतिम ऋषि, नराशंस। भाषा का भेद है बस। कल्कि अवतार बोले तो माहिर बुतलान, नराशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तारीफ़ की गई हो। तो इस तरह से यहाँ की किताबों में पुकारा गया। रोल खुद बाइबल में पुकारा गया। तो हर किताब में हर नबी ने बशारत दी है कि एक नबी आने वाले हैं। तो हर कौम इंतज़ार में है। तो जब इनको मालूम हो जाएगा, आज हम मुसलमान मना रहे हैं, जब इनको मालूम हो जाएगा कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वही नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है, तो वो कौम भी इस दिन जश्न मनाएगी। तो इस वास्ते ये ईद उल अयाद है, ईदों की ईद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से हमें सब कुछ मिला। आपकी आमद होने से कुरान मिला, इस्लाम मिला, दीन, नमाज, रोज़ा, सब कुछ, ईदें जो है सब कुछ मिला। अगर आपका वजूद ना होता तो, आपकी आमद ना होती तो ये रहमत, ये नेमत सबसे है ना इंसान गाफिल रहता था। तो आपका आना दुनिया पे ये क्या है? अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ताला क्या फरमाता कुरान करीम में? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए खुशी का दिन है, नेमतों वाला दिन। कौन सा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना। तो इस हिसाब से आज का दिन ये जश्न मनाने का दिन है, खुशियों का दिन है। तो आप कुरान करीम में आप देखेंगे तो हर आयत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करती है। बस देखने की ज़रूरत है। हर आयत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान छुपी हुई है। गोया कुरान करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में डूबा हुआ है। हर आयत तारीफ में लगी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का मकसद जो था ये कायनात आलम को बनाने का, वो आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा हुआ। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया आए, मगर वहाँ पर अल्लाह का मकसद नहीं हुआ, अल्लाह का दीन मुकम्मिल नहीं हुआ, किताब मुकम्मिल नहीं हुई, कोई चीज़ मुकम्मिल नहीं थी। यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर चीज़ मुकम्मिल कर दिया अल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह का मकसद भी पूरा हो रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हरुल्लाह बनकर, अंबिया इकराम सिफ़ात के मज़हर थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के मज़हर बन के आए। तो ये जैसा कि मैंने कुरान करीम में आयत पढ़ी, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तुल लिन्नास, इससे पहले भी आप मुकर्रिर से सुना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया है, एक एक कौम के लिए, एक एक खित्ते के लिए, एक वक्त के लिए। अब जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए। एक कनानी औरत आके ईसा अलैहिस्सलाम को बोल रही, क्या है ईसा, मुझे भी तुम्हारी कौम में ले लो। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, अरे औरत, मैं बनी इसराइल की खटकी हुई भेड़ियों की तरफ भेजा गया हूँ। दूसरों से मेरा काम नहीं है, दूसरों की इसमें लेना मेरा काम नहीं है। यानी दूसरों को हिदायत देना उनके पास कुछ सामान था ही नहीं, सिर्फ वो बनी इसराइल के लिए आए। जैसा कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता, ईसा ली कौमी, ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए, मूसा ली कौमी, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए, दाऊद ली कौमी, दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फरमाता काफ़तुल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद काफ़ी है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दीजिए आए इंसानों, आए मुसलमानों नहीं, आए अरब की कौम नहीं, आए इंसानों, दुनिया में जहाँ तक भी इंसानियत बसी हुई है, तमाम इंसानों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद नबी बनकर आया है। तमाम इंसानों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद रहमत बनकर आया है। और आपका दीन तमाम इंसानों के लिए आया। तो ये फ़र्क अंबिया इकराम में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और
ऐसे तो बोलने के लिए बहुत सी तारीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते चले जाओ तो समंदर भी अगर स्याही बन गया और दरख्त कलम बन गए तो वो शान ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमारे पास मुकर्रिरीन बहुत ज़्यादा हैं। बोलने वाले हर कोई बोल सकता है यहाँ पर, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दो ऐसा देखा गया तो दो सेंटेंसेस, दो जुमले हैं, लेकिन ज़रा गौर करने पर पता चलता है कि इनकी शुरुआत नेगेटिव है, नहीं से की जाए। और हमने नहीं भेजा आपको बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये जो नेगेटिव अल्लाह पहले ला रहा है, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो राज ये है, जिस तरह आप मैंने अभी सुना है दूसरे मुकर्रिरीन से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तमाम अंबिया आ चुके थे और उन्होंने अपने हद तक अपनी कौम के लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम हिदायत ला लिए, और सभी कौम उनके उसूल के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर थे, रहना भी चाहिए था, लेकिन वो मुकम्मिल नहीं थे, नाक़िस नबी थे, उनकी नबूवत के अंदर फ़र्क था, कौम में फ़र्क आया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो इंतज़ार था वो उनसे रह गया। वो लोग जाके अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़कर शैतानियत में कौम तागूत बन चुके। इसके वजह से अल्लाह ताला जब कलमे तैयबा आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सिर्फ ऐसा नहीं बोला अल्लाह अहद मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला। इसका मतलब यह है कि इस्लाम जब खड़ा सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव जारहाना अमल लेके खड़ा, क्योंकि इस्लाम को बनाए हुए तागूत के सभी मकर को तोड़ना था, और यही उसूल सहाबा अकराम का था। ये उसूल पे सहाबा अकराम जब चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे इस्लाम बहुत ज़ोरों से आगे उठा। फ़र्क कहाँ पड़ा? फ़र्क ये पड़ा, ये उसूल छूट गए हैं। आज ये कलमा तैयबा का झंडा अगर ऊंचा बुलंद खड़ा है तो ये निशानदी यही बता रही है कि हमें भी वही उसूल पकड़ना है, जहाँ पे हमें एग्रेसिवली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद को कायम करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहना है। इसके लिए दो राय है ही नहीं। जितने लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर है, लेकिन सब क्या हो जा रहे हैं, हमें तागूत होके मकर में घुस गए। वो मकर को तोड़ने के लिए जारहाना अमल करना पड़ता है। ये जारहाना अमल हज़रत आलम लेके आए, इसलिए बोले जारहाना अमल दावे चंद स्वेश में जलजला आ गया, कुल हिंद बहुक्म दावत इब्तिदा काम किए, कुल हिंद लाए, इससे कुल जमी बाद में हो जाएगी तितर बितर। तो ये काम जब अल्लाह का काम रहता है, करने के लिए बंदों को उठ के खड़ना पड़ता है। उसकी मिसाल आज आप लोग खुद देख लिए। जब ऐसा कुछ काम करना है, हम लोग हैदराबाद से इतनी दूर क्यों आ रहे हैं? ये एक जज्बा है, इसके लिए कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, या ये करके किसी को बताने वाले नहीं है, ये हमारे दिल में जज्बा है। और ये जज्बे की वजह यह है कि हमारी कलमे की तरफ उल्फत है, मोहब्बत है, और वो मोहब्बत हमें किस तरह ज़ाहिर करनी है कि हमें हमारा एटीट्यूड भी सिर्फ जारहाना रखना है। अल्लाह अकबर। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है समझना कि इंसान जब कुछ नहीं करने जाता ना, ठंडा पड़ जाता है। फ़ौज में भी जब तक जंग नहीं होती, फ़ौज को क्या करते, फ़ौजी को ट्रेनिंग दी जाती रहती, खाली बैठा रहा तो काम नहीं हो सकता। तो हमको हमारे रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ में, हमारी सोच में, हमारे ख्याल में यही रखना है कि हमें इस्लाम के लिए जारहाना तरीके से, एकदम एग्रेसिव तरीके से तैयार रहना है। वो आज मिसाल आप लोग बताए, क्योंकि और दूसरे मुकर्रिरीन भी है। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
کیا مطلب اکثر لوگ آج کے دن میں تاریخ میں بھی جو ہے کنفیوژن بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں بھی